جناب اسپیکر، جس طرح میرے بھائی نصر اللہ زیر صاحب یہ قرارداد لے کے آئے ہیں، میں اس کی تائید کروں گی، کیونکہ نصر اللہ زیر صاحب نے تو اس کی صرف آپ کو کوئٹہ ڈسٹرکٹ کی صرف بات کی اور کچھ اسکول کے آپ کو کیلکولیشن کرائی۔ اگر ہم 15,068 15,088 اس وقت آپ کے بلوچستان کے اسکولز ہیں، اس میں مڈل، پرائمری اور ہائی اسکولز ہیں، جن میں 706 آپ کی کو ایجوکیشن ہے، وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کو ایجوکیشن ہے جو آپ کی پرائیویٹ ہیں، بلکہ ہمارے رورل ایریاز میں جو پرائمری اسکولز ہیں ان میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک جگہ تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے، تو وہ اس کو بھی ہم اسی کو ایجوکیشن میں جو 706 ہے اس میں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی 10,122 آپ کے بوائز اسکول ہیں اور 4,260 آپ کی گرلز اسکول ہے۔ یہ آپ کے بلوچستان کا ڈیٹا ہے، آپ بی ایم ایس سے آپ اس کا باقاعدہ نکال سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تقریباً جو حالات انہوں نے یہاں صرف کوئٹہ کے آپ کو بتائے، تو میرا خیال ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اگر ذرا سا کوئٹہ سے باہر جائیں گے، ذرا سا سائڈ سبربز ایریاز میں جائیں گے یا دوسرے ڈسٹرکٹس میں جائیں گے، تو حالات اظہار اس سے بھی برے آپ کو ملیں گے۔ میرا سوال آج کا تھا جو پنچپائی کے حوالے سے تھا کہ ایک اتنی بڑی آبادی ہے اور وہاں پہ گرلز اسکول ہے، اور گرلز اسکول میں اپوائنٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول بند ہے، جس کی وجہ سے بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ بوائز اسکول آپ کا رننگ ہے، وہاں پہ آپ کے جو ہے نا اپوائنٹمنٹس بھی ہو رہے ہیں، آپ کا جو ہے نا کلاس 4 کی جس طرح انہوں نے بات کی وہ بھی ہے۔ میں ذرا سے اس سے ہٹ کے یہاں پہ دیوار کالونی کی بھی میں بات کروں گی، نصر اللہ زیر بھائی نے جیسے بات کی، اب 1,000 اسٹوڈنٹ سے زیادہ وہاں بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ اس بلڈنگ کو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے پرائمری اسکولز کی جو بلڈنگز ہیں وہ اس سے زیادہ بڑے آپ کو ملیں گے۔ کشمیر آباد میں اسی طرح اسکول ہے، فیض آباد میں آپ کے اسکول ہے، ذرا سے آپ اسکول بلڈنگز کو بھی دیکھیں کہ اس میں اس طرح کی بچیاں، کیچی بیگ کی انہوں نے بات کی، کیچی بیگ بھی آپ جا کے دیکھیں، نصیر صاحب بھی، ملک نصیر شاہوانی صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے وزٹ کیا تھا کہ بچیاں وہاں کس طرح بالکل بند کر کے ان کو یعنی رکھا گیا، کیونکہ وہاں پہ کمرے نہیں ہیں، وہاں پہ ایریاز میں جو ہے نا زمینیں اگر ہیں تو گورنمنٹ اس طرح سے لے نہیں رہا ہے ان کو۔ میں مستونگ کی طرف جاؤں گی تو اشکنہ گرلز ہائی اسکول، ہزاروں کی تعداد میں بچیاں ہیں، کمرے نہیں ہیں، برآمدوں میں بچیوں کو بٹھایا ہوا ہے یا پھر دھوپ میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ گرلز ہائی اسکول مستونگ، مسنگ فیسلٹیز کی میری بھائی نے بات کی، تو آپ کے گرلز اسکولز میں واش روم کا کوئی انتظام نہیں، آپ کی مسنگ فیسلٹیز کہیں پہ بھی آپ نہیں دے پا رہے ہو۔ اسی طرح میں کلات میں گئی، خیسندون ایک علاقہ ہے کلات سے ذرا آگے جا کے، یہ 2008 یا 2006 میں یو این کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور اس کو ماڈل ولیج ڈکلیئر کیا گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ صحت کی سہولیات موجود تھی، اس علاقے میں پانی موجود تھا، اس علاقے کے گرلز اور بوائز اسکول چل رہے تھے۔ لیکن جب لاسٹ ٹائم یعنی کوئی 1 سال پہلے جب میں گئی وزٹ کرنے، گرلز اسکول بند کیا ہوا تھا، ڈسپیوٹڈ تھا، کیونکہ علاقے کے وہاں کلاس 4 کے کسی اور کو اپوائنٹمنٹ جو ہے نا اپوائنٹ کیا گیا تھا اور علاقے کا بندہ نہیں تھا، تو وہ ڈسپیوشن میں وہ اسکول بند کر دیا گیا تھا۔ اب اسکول بند کرنے سے ہماری بچیاں تعلیم سے رہ جاتی ہیں، اور یہ کمپلین میں نے کئی مرتبہ کرائی۔ پھر اس کے بعد ہم اسی طرح ہمارے گرلز ظاہر ہے ڈراپ آؤٹ ریشو زیادہ ہوگا، بوائز تو کہیں پہ بھی جا کے اپنی تعلیم کنٹینیو کر سکتے ہیں، شہر آ سکتے ہیں، کسی کے گھر میں رہ سکتے ہیں، کسی ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کا جو متاثر ہوگا وہ گرلز ایجوکیشن آپ کا ہوگا۔ کلسٹر بجٹ کی میرے بھائی نے بات کی، کلسٹر بجٹ کا میکینزم جیسے وہ ہائی اسکول کو ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے سراؤنڈنگز میں جو مڈل اسکول اینڈ دین پرائمری اسکولز۔ جناب اسپیکر، اگر یہ بجٹ اچھی طرح یوٹیلائز ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں اور جانا پڑے، ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے۔ یہ ایک شوز میں اپنے موبائل پہ دکھا رہی ہوں، یہ ایک ٹیچر نے مجھے یہ تصویر بھیجی ہے کہ میں نے اس سال انرولمنٹ بچیوں کی کروائی ہے، خدا را یہ شوز صرف ارینج کر کے دے دو کہ اس گاؤں کی بچیوں کے پاس جوتے نہیں ہیں پہننے کو۔ جناب اسپیکر، میں یہ تصویر آپ کو سینڈ کروں گی، اس نے مجھے سیمپل کے طور پہ ود نمبر بتائے کہ خدا را یہ شوز ہمیں لے کے بھجوا دے کہ ہماری بچیاں جو ہم نے انرولڈ کی ہیں ان کے پیروں میں جوتا نہیں ہے، میں ان کے لیے یونیفارم ارینج کر رہی ہوں، بیگز ارینج کر رہی ہوں، ان کے لیے کچھ شوز آپ ارینج کریں تاکہ یہ بچیاں پھر اسی رمضان کے بعد یہ نہ ہو کہ یہ عید کے بعد جو ہے نا اسکول آنا ہی چھوڑ دیں۔ تو حالت اظہار یہ ہے، اگر کلسٹر بجٹ ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، پرائمری اسکول کی ڈیمانڈز اپنی ہوتی ہیں، مڈل کی اپنی ہوتی ہیں، ہائی کی اپنی ہوتی ہیں،
ان کو وہ بجٹ دیا جائے, کم از کم ان پرنسپلز پہ اتنا تو اعتبار کر لے کہ ان کو ان کا اماؤنٹ دیا جائے تو تاکہ وہ ان بچیوں پہ اس کو اسپینڈ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر پلان ہے. اب اس میں جب چیزیں جب لیکنگ کرتی ہیں نا جناب اسپیکر, اس میں جب لیکنگ کرتی ہے وہ ہے ہمارا مانیٹرنگ میکینزم. ہمارا مانیٹرنگ میکینزم اتنا ویک ہو چکا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو یعنی بہتری کی طرف نہیں لے جا پا رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ہم ٹرانسفر بھی کروا رہے ہیں, پوسٹنگز بھی کروا رہے ہیں, یہاں پہ ہم لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں علاقے, اور یہ ہوا ہمارے ساتھ آغاز حقوق بلوچستان میں, کیونکہ میں نے خود کام کیا. میں یونیسیف کے ساتھ ایز ریسرچ ایک ریسرچ آفیسر کام کری تھی. ہم نے پالیسی پلاننگ امپلیمنٹیشن یونٹ کو اسٹیبلش کرنے میں ہمارا ہی نام تھا, ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آغازی حقوق میں یہی ہوا کہ جتنے بھی ایس ایس ٹی کے اپوائنٹمنٹس ہوئے وہ بھی ٹرانسپیرنسی سے ہم نے جتنا کرنے کی کوشش کی. خواتین کو بھی اس میں اتنی نمائندگی دی گئی, میلز کو بھی دی گئی کہ ہم نے 2200 خواتین کو بھی اگر جابز دلوائی. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جتنی بھی ٹیچرز تھی انہوں نے ان علاقوں سے اپنا ٹرانسفر کوئٹہ کرا لیا, کیونکہ آپ کا کوئٹہ میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں, شاید وہاں پہ ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی. تو وہ جو جتنا چنک تھا وہ آغاز حقوق کا بھی وہ بھی آپ کا کوئٹہ میں آ گیا. اس سے پھر جو آپ کی وہ والی سیٹس ہے وہ بھی آکیوپائی ہو گئی. اس وقت سب سے زیادہ آپ کا اسٹاف جو ہے نا, اگر آپ نکال کے بھی دیکھیں گے ڈیٹا, آپ کے ہیلتھ میں سب سے زیادہ آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کا ایجوکیشن میں سب سے زیادہ امپلائیز ہیں آپ کے, لیکن ان پہ وہ مانیٹرنگ میکینزم نہیں ہے. ان کی اس طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی جاتی ہے کہ آیا وہ ٹیچر وہ کوالٹی ایجوکیشن اپنے اسٹوڈنٹس کو دے پاتا ہے نہیں دے پاتا. لہٰذا اس پلیٹ فارم پہ میں یہ کہتی ہوں, یہاں پہ عوامی نمائندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, پورا بلوچستان ہمارا ہے. اگر ہم نے اسی طرح چیزوں کو اولی سولی لے کر چلنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی کسی اور ترقی یافتہ صوبے کو, پہلے میں ملکوں کی نہیں بات کروں گی, صوبے کی بھی ہم برابر آ سکے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنا مانیٹرنگ میکینزم اس کو بہتر بنانا ہے. ہم اگر پالیسیز کی یہاں بات کرتے ہیں, جو وہی پالیسی تھی کہ جو جہاں پہ ہے وہیں پہ اس کی جاب ہوگی جس ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے, ایک تو اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور باقاعدہ آپ کا بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان بنتا ہے ہر سال, جو یونیسیف اور باقی جتنے بھی ڈونر آرگنائزیشنز ہیں, آپ کا ایجوکیشن اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, اس ایجوکیشن سیکٹر پلان کو امپلیمنٹیشن کرانا گورنمنٹ آف بلوچستان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ہم نے کتنے لوپ ہولز ہیں ہمارے, کہاں کہاں جو ہے نا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیپس آ رہے ہیں, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں کہ ہم ان تمام چیزوں کو فل کریں, تب ہم لے کے چلیں گے. پہلے ہمارا جو بیسک ہے, جو پرائمری اسکول ہے, ہم اگر اس کو برابر کر کے چلیں گے تو میرا خیال ہم یونیورسٹیز تک پھر چیزوں کو سیکوینس وائز لے کے چلیں گے. تو بالکل اس قرارداد کی میں تائید کروں گی, کیونکہ اگر آپ نے بہتر بلوچستان اور تعلیم یافتہ بلوچستان بنانا ہے تو یہی چھوٹی چھوٹی یہ جو نیٹی گریٹی یا ٹائنی جو ہماری چیزیں ہیں, انہی کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنا ایک اچھا میکینزم بنائیں تو ہم چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو جناب اسپیکر. بہت شکریہ. تھینک یو مسٹر چیئرمین. قرارداد نمبر 142. ہر گاہ کوئٹہ کی آبادی تقریباً 35 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے, اور اس کے اطراف میں جو گرلز اور بوائز اسکول قائم ہیں, ان اسکولز میں طلباء و طالبات کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس کے مقابلے میں اساتذہ کی تعداد بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ان علاقوں کے اکثر طلباء و طالبات تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ عوام صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ محکمہ تعلیم کوئٹہ کے مضافات, جن میں مشرقی بائی پاس, سریاب, کچلاگ, موسیٰ کالونی, غلجی کالونی, بڑے چاباد, پشتون آباد میں اساتذہ کی کمی دور کرنے کی ہدایت بابت عملی اقدامات اٹھانے کو یقینی بنائیں. قرارداد نمبر 142 پیش ہوئی. کیا محرک اپنی قرارداد نمبر 142 کی ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے؟ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. تمام دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ تعلیم اور علم شعور کے بغیر ہماری سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. اور پھر سب سے بڑھ کر جو پرائمری, مڈل اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے جو لازم ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25A میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر
بچے کو کم از کم میٹرک تک وہ تعلیم دلائے اور مفت دلائے. اور جناب چیئرمین کوئٹہ شہر اور انٹائر دا پروونس اگر آپ دیکھیں تو حالت انتہائی ایجوکیشن کے حوالے سے بری ہے. ایمرجنسی تو ڈکلیئر کی گئی ہے لیکن عملاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انٹائر پروونس کی بابت اگر میں بات کروں تو اگر میں یہ کہوں کہ 75% سے زائد آپ کے اسکول بند پڑے ہیں, اسکولوں کو تالے لگائے گئے ہیں. اگر آپ یہ مستونگ ڈسٹرکٹ ہے کوئٹہ کا, اس کے اطراف کے اسکولوں میں جائیں, جس طرح پنچپائی کا ایک اسکول کا ذکر کیا گیا ہے, وہاں اسکولوں تمام وہاں کے پرائمری مڈل اسکول بند پڑے ہیں. برشور ہمارا علاقہ ہے, وہاں کی تمام اسکولیں جو ہے نا وہ بند پڑی ہے. اور باقی جتنے بھی آپ ڈسٹرکٹ اٹھائے آپ یقین نہیں کر سکتے ہو کہ حالت اتنی بری ہے کہ اسکولز بند پڑے ہیں. ہمارے ٹیچر حضرات اکثر اسکولوں میں وہ غیر حاضر رہتے ہیں. اور جب ہم کوئٹہ شہر کی آبادی کی بات کرتے ہیں, یہاں پر صورتحال اتنا ان بیلنس ہے جناب چیئرمین کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میں آپ کے سامنے صرف وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا, آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ٹیچرز کی تعداد کتنی ہے, اسٹوڈنٹ کی تعداد کتنی ہے, اور اس کے مقابلے میں مضافات جس کا میں نے ذکر کیا وہاں کیا پوزیشن ہے. بچے, میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں کہ 2016 میں ہم نے کوئی 20 اسکول سٹارٹ کیے. یہ محکمہ تعلیم کا رپورٹ ہے کہ 2016 مارچ میں 10,000 بچوں اور بچیوں نے ایڈمیشن لیا. تعلیمی مہم ہم نے چلائی, لیکن آج وہ 10,000 بچے اور بچیاں, ان کا ڈراپ آؤٹ, ان کے نکلنے کا تعداد اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہاں اب جہاں 600 بچے پڑھتے تھے آج 100 بچے بھی وہاں نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ باتیں تو بڑی ہوتی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کے لیے ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن عملاً ایسا نہیں ہے. جناب چیئرمین, میں کوئٹہ شہر کی بات کروں گا, کوئٹہ شہر کے اندر اسکولوں کی. یہ مسجد روڈ کے 3-4 گلیوں میں 4 ہمارے پاس اسکول ہے. ذرا غور فرمائیے جناب والا, گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اپوا مسجد روڈ پہ واقع ہے, بہت بڑی بلڈنگ ہے. اس کی کل طالبات کی تعداد 139 ہے. 139 بچیاں, 139 وہاں طالبات پڑھتی ہے. ٹیچرز کی تعداد 29 ہے, اور 4 بچیوں پر 4 طلباء پر 1 ٹیچر ہے. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پاک, یہ بھی مسجد روڈ پہ واقع ہے, اگلی گلی میں. یہاں پر طالبات کتنی پڑھتی ہے جناب چیئرمین؟ 282 طالبات یہاں پہ پڑھتی ہے. اتنے بڑے بلڈنگ میں, بہت بڑا اسکول ہے, بہت بڑا بلڈنگ ہے. وہاں ٹیچرز کی تعداد کتنی ہے؟ 56 تعداد ہے وہاں ٹیچرز کی. 5 بچیوں پر 1 ٹیچر ہے. مذکورہ اسکول میں کم و بیش جو پاک اسکول ہے 28 ایس ایس ٹی ٹیچرز ہے. ان 28 ایس ایس ٹی ٹیچرز میں ایسے بھی اساتذہ ہے جو فیمیل ہے, جن کا دن میں ایک بھی پیریڈ نہیں ہوتا ہے.
وہ سارا دن وہاں اسکول میں آ کر حاضری لگاتی ہے اور پھر وہاں کشیدہ کاری کرتی ہے, اپنے گھریلو کام وہاں اسکول میں کرتی ہے. گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول محلہ مسجد روڈ, یہ چوتھا اسکول مسجد روڈ میں واقع ہے. یہاں طالبات کی تعداد 140 ہے اور ٹیچرز کتنی ہیں؟ 28 ٹیچرز یہاں پر ہے, 5 بچیوں پر 1 ٹیچر ہے. دوسرا اسکول ساتھ ہی ہے گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول ڈاکٹر بانو روڈ. یہاں پر طالبات کی تعداد کتنی ہے؟ 67 طالبات یہاں پڑھتی ہے, 19 ٹیچر ہے اور 3 بچیوں پر 1 یہاں پر استانی صاحبہ ہے. یہ میں نے مسجد روڈ کے 4 اسکولوں کے میں نے ایوریج نکالا ہے. یہاں کل ان 4 اسکولوں میں کل 628 یہاں پر طالبات پڑھتی ہیں. یہاں 132 ٹیچر ہیں ان 4 اسکولوں میں اور 4 یہاں پر 4 طالبات پر 1 ٹیچر ہے. اور جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول اسپیشل گوردت سنگھ روڈ ہے, 236 طلباء ہے, 21 ٹیچر ہے. گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول شالدرہ, یہ بھی اسپیشل اسکول کے اندر ہے. 3 پرائمری اسکول ایک ساتھ ہے, تینوں کی دیواریں ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ بھی گورت سنگھ روڈ پہ 100 طلباء ہے, 10 ٹیچر ہے. اور اس کے ساتھ تیسرا اسکول ہے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کاسی کہتے ہیں, گوردت سنگھ روڈ پر ہے. اس میں 376 طلباء ہے, 22 ٹیچر ہے. ان 3 اسکولوں میں 712 یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے, 53 ٹیچر ہے اور فی 13-12 اسٹوڈنٹ پر 1 ٹیچر ہے. جناب چیئرمین, اس کے علاوہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ریلوے جوائنٹ روڈ پہ جو واقعہ ہے, یہاں پر 1500 طالبات کے لیے 163 ٹیچر مہیا ہے, 9 طالبات پر 1 ٹیچر ہے. اور مذکورہ اسکول کا جو ایڈمنسٹریٹر صاحبہ ہے, پرنسپل, انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس 30 سے زائد ہمارے پاس اساتذہ جو ہے نا وہ سرپلس ہے, یہ یہاں سے نکالا جائے. میں دوسرا اسکول گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کوچہ ولی محمد سرکی روڈ, یہاں سیکنڈ شفٹ میں 45 بچے ہیں, 9 ٹیچر ہے. زرغون ٹاؤن کا جو سٹی کا علاقہ ہے, یہاں 57 اسکول ہے جس میں 509 ٹیچر یہاں تعینات ہے. اور یہاں کے جو زرغون ٹاؤن کے نواکلی اور اناوڑک بھی زرغون ٹاؤن میں, وہاں حالت جو ہے نا بالکل اس کا الٹ ہے. وہاں جو ہے نا سینکڑوں طلباء ہے اور ٹیچرز کا نام و نشان نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا. گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول بستی پنچایت میں کتنے یہاں پر طلباء ہے؟ محض 22 طلباء یہاں پڑھتے ہیں, 11 ٹیچر ہے. 22 طلباء پر 11 ٹیچر. اور اس کے مقابلے میں ابھی چلتن ٹاؤن جو اطراف کے علاقے ہے, میں اس کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. میل اور فیمیل پرائمری اسکول گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول غلجی کالونی ہے, یہاں 800 طلباء نے داخلہ لیا, محض 6 اساتذہ یہاں پر ہے 800 طلباء پر. تو کیا جب ایک ٹیچر کے پاس 120 طلباء ہوں گے, کیا وہ بیچارہ کام کر سکے گا؟ یہاں پر گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کلی کمبرانی 833 طالبات ہے, 30 ٹیچر ہے. یہاں کم و بیش 35-40 بچیوں پر 1 استاد ہے. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کچی بیگ
जो कम व बेश 2500 यहां तालिबात पढ़ती है कच्ची बेग हाई स्कूल में, यहां पर 2500 पर महज 40-45 यहां पर टीचर्स है और कोई 50-55 बच्चियों पर एक उस्तानी वहां है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल किलिया टोजे कुचलाग में 172 तालिबात पढ़ती है, 172 तालिबात पढ़ती है। जनाबे चेयरमैन महज 2 टीचर है। अभी आप अंदाजा लगाएं, 86 बच्चियों पर एक टीचर वहां 86 बच्चियों को पढ़ाती है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल किली उमर यह कोयटा का अतराफ में है, यहां पे 900 तालिबात पढ़ती है, 28 टीचर है, कम बेश 40 बच्चियों पर एक उस्तानी है। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल बड़े चाबाद मूसा कॉलोनी 500 तलबा, महज 5-6 टीचर है। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल सदर टाउन मशरकी बाईपास, महज 1 टीचर। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किली हबीब फैजाबाद 228 तलबा पर महज 3 टीचर है, 76 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल रहीम गुल किली बलेली में 200 तलबा पढ़ते हैं, महज 6 असाजा यहां पर है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल लालाबाद हजारगंजी में वाकिया है, 264 तलबा पर 2 टीचर है। 130 बच्चों के लिए 130 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। जनाब स्पीकर, अभी आप अंदाजा लगाएं कि ये बहुत सारे अतराफ के स्कूल है जो बंद पड़े या साजा तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, अब ये सूरत हाल है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब को आप कॉल करें, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर साहब, ताकि वो ये सुन ले, ये बातें ये वहां पहुंचाई जाए। ये हम किसको सुना रहे हैं? यहां पर तालीम के वजीर साहब भी नहीं है और सेक्रेटरी साहब भी नहीं है। और जनाबे चेयरमैन, अब ये जो हमने हुकूमत ने कहा है कि तालीमी इमरजेंसी है, तालीमी इमरजेंसी का मैंने सिर्फ आईना दिखाया है, वो भी सिर्फ कोयटा का। गर्दगाह में स्कूल है, वहां बंद पड़ा है। चमन में स्कूल है, वहां बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं। जनाबे चेयरमैन, इसकी एक वजह यह भी है कि सैकड़ों टीचर्स ने बाहर के जिलों के यहां कोयटा में अपनी अपॉइंटमेंट की है। एक इसमें यह होता है कि अगर पशीन से कला से कोई टीचर आता है, वहां की पोस्ट खाली होती है, वहां पे नया बंदा भर्ती होता है। हमारे स्कूल, हमारे जो स्कूल वो है, पोजीशन है, पोस्ट है, उस पे वो ऑक्युपाई हो जाता है, जिससे तो हमारा हक मारा जाता है। इसमें आपने ये करना है जनाबे चेयरमैन कि एक जो हमारी तजावीज है, और तजावीज देने से पहले मैं नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करूंगा। इन स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ में क्लर्क, चौकीदार, नायब कासे, स्वीपर, माली आते हैं। मसलन एक स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ईसा खान, इसमें तकरीबन 10 क्लास 4 के मुलाजिमीन है, 10 क्लास 4 के मुलाजिमीन है। और ऐसे स्कूल है जिसमें एक भी क्लास 4 का मुलाजिम नहीं है। आप कच्ची बेग हाई स्कूल में जाए, वहां गर्ल्स, वहां 1 या 2 क्लास 4 के मुलाजिमीन है। वहां गिलची कॉलोनी मिडिल स्कूल में एक नायब कासिद था, उसको भी डीओ ने ट्रांसफर किया। मैंने क्वेटा के डीओ को फोन किया कि एक नायब कासिद था, आपने उसको भी ट्रांसफर कर दिया, ये स्कूल यहां क्या होगा? तो जनाब चेयरमैन, सूरत हाल ये है कि सबसे पहले कि ये जो जितने भी यहां पे टीचर्स
की ट्रांसफर हुई है बार डिस्ट्रिक्ट से, चाहे जहां से भी हो, उन सबको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए, ताकि वहां जो जहां उनकी पोस्टिंग हुई है, जहां जिस गांव से वो ताल्लुक रखता है, वहां जाकर पढ़ाए वो। मुसीबत ये है कि जब सीट की बारी आती है, मेडिकल सीट की, इंजीनियरिंग की, अगर मैं मस्तुक में जाऊं, अगर मैं पशीन में जाऊं, तो मुझे नहीं छोड़ेगा कि आप बाहर के हो, आपका यहां हक नहीं बन रहा है, आप यहाँ के लोकल नहीं हो। जब वो सीट पे ऑक्युपाई वो करता है, जब वो डॉक्टर बनता है, जब वो टीचर बनता है, अपने स्कूल पर, अपने यूनियन काउंसिल पर 1 साल वो नहीं गुजारता है, वो क्विटा आकर के यहां ट्रांसफर करके यहां बैठ जाता है, और फिर जाकर के वहां मुस्लिम बाग में, किला सैफुल्लाह में, कल्लात में, पशीन में वो स्कूल जो है ना बंद पड़े। तोबा चकजई हमारा इलाका है, तोबा काकड़ी, वहां के सारे स्कूल बंद पड़े। पूरा आपका वहां नस्ल जहालत के अंधेरों में डूब रहा है, कोई स्कूल खुला नहीं है, वो सारे बच्चे जो है ना बगैर तालीम के वो बढ़ रहा है। इसीलिए तो हमारे सूबे में 72% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, 72% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटायर द प्रोविंस हमारे स्कूल बंद पड़े हैं। जनाबे चेयरमैन, मैं आपके सामने जो हमारी तजावीज है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहला ये है कि फौरी तौर पर रेशनलाइजेशन की जाए। महकमा तालीम अगर इमरजेंसी एजुकेशन नाफिज है, रेशनलाइजेशन की जाए, किसी खौफ और डर के बगैर। डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर हेल्थ साहब तमाम इलाकों के स्कूलों को खोल दे। टीचर जो शहर में सैकड़ों यहां बैठी हुई है इन स्कूलों का, जिनका मैंने एक एक का नाम लिया, इन सबको इन इलाकों में, कच्ची बेग में, सरियाब में, पश्तुनाबाद में, मशरकी बाईपास, कुचलाग में, बलेली में, जो स्कूल अनौड़क में, नवाकिली में, इनमें इन टीचर्स को भेज दे। एक शहर है, सड़कें बनी हुई है, सहूलत मौजूद है, बसें चल रही है, रक्शे मौजूद है, ट्रांसपोर्ट मौजूद है, लाखों रुपए तनख्वाह वसूल की जा रही है। जाकर पढ़ाए वहां स्कूलों में जो स्कूल बंद पड़े हैं। और दूसरी बात, ये तमाम इकदामात इनको करने के लिए मेरी ये तजवीज होगी कि क्वेटा के एमपीए साहिबान की कमेटी बनाई जाए, उसमें सेक्रेटरी तालीम भी हो, मिनिस्टर भी हो, डायरेक्टर भी हो, डीओ डीडीओ जितने भी है वो भी हो, वो फौरी तौर पर मीटिंग करे। और ये इमरजेंसी है जनाब स्पीकर, हमारे लिए, हमारे स्कूल बंद पड़े हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि हम पढ़ा नहीं सकते, बच्चे इसी तरह गलियों में घूम रहे, जहालत के अंधेरों में वो बड़े हो रहे। लिहाजा फौरी तौर पर क्वेटा के एमपीएस का यहां कमेटी बनाई जाए ताकि वो तमाम स्कूलों में जाकर के मुआयना करे और रेशनलाइजेशन जो है ना वो फौरी तौर पर की जाए। दूसरा जनाबे चेयरमैन, जो सबसे बड़ा इशू है क्लस्टर बजट। ठीक है, एक हाई स्कूल होता है, उसके नीचे 10 मिडिल प्राइमरी स्कूल होता है। शहरों में क्लस्टर का क्या जरूरत है? अभी अफवाह स्कूल में, आपके पाक स्कूल में, बाकी शहर के स्कूलों में डेस्क पड़े हुए हैं, तमाम सहूलियात मौजूद है। हमारे यहां जो है ना, यकीन करें कि बच्चों के लिए टाट भी नहीं है, टाट। डेस्क तो दूर की बात है। मेरी तजवीज ये होगी कि इस साल क्लस्टर का तमाम बजट इंटायर, जो हमारे मजाफाती इलाके जिनका मैंने बार बार नाम लिया, इन इलाकों के लिए क्लस्टर बजट इस साल मुख्तस किया जाए, डायरेक्टर को हिदायत की जाए। और इसी तरह जो क्लस्टर में जो बजट है वो तमाम बजट इन स्कूलों की सहूलियात के लिए, अभी आप जाकर
2500 बच्चियों के लिए 2 टॉयलेट नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है। बच्चियां कहां जाएं? बड़े बड़े स्कूल है, वहां जो है ना सैकड़ों बच्चियां पढ़ती। मैं खुद कच्चीबेग स्कूल गया था, वहां 2500 से ज्यादा वहां पे बच्चियां पढ़ रही थी। मैं गया गिलजी कॉलोनी मिडिल स्कूल में 800 बच्चे हैं, बाकी स्कूल है। आप सरियाब जाओ, आप कुचलाग जाओ, आप जो है ना पश्तूनाबाद जाओ, आप हैरान रह जाएंगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जो मैंने तजावीज पेश की है, जिन जिन बातों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, मैं समझता हूं कि आपका भी मसला है, हजारा टाउन का भी मसला है, बाकी हमारे एमपीए साहिबान बैठे हुए, इन सब का मसला है। इन ये जो हमारे किला सैफुल्लाह और डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत, बाकी जोब का भी यही मसला है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी यही मसला है कि बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं। हमारे डीओ साहिबान, डीडीओ वो दौरे नहीं करते हैं, पत्नी मंथलियां लेते हैं उनसे, क्या करते हैं? स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे जो है ना बाहर है, स्कूलों को ताले लगे हैं, असाजा नहीं आ रहा है। तो देखे, असाजा कराम हमारे लिए मोहतरम है, हमने उनके तनख्वाहों के लिए जद्दोजहद की है, हमने उनके साथ भूख हड़ताल पे हम बैठे हैं, हमने उनको इज्जत और एहतराम से देखा है। उनका जो यूनियन है उनके साथ हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है, उनके यूनियन से भी, असाज़ाए कराम से भी, कि आप अपने असाज़ाए कराम को पाबंद कराए। ये आपके अपने बच्चे हैं, ये कहां जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ नहीं सकते, फीसें अदा नहीं कर सकते। सरकार ने बिल्लन-दुबाला आलीशान बिल्डिंग बनाए, लेकिन बिल्डिंग के अंदर असाज़ा जो है ना उनकी कमी है, उनकी कमी है। ये हुकूमत का फर्ज है वो कमी दूर करे। जो टीचर गैर हाजिर है, ये हुकूमत का फर्ज है कि वो टीचर को हाजिर करे। असाज़ाए कराम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपका बहुत बड़ा रुतबा है, हम आपका कदर करते हैं, हम आपके मुतालिबात के हमेशा हम आपके साथ रहे, लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने हाजिरी को हर हालत में स्कूलों में यकीनी बनाए। मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा, बाकी दोस्त पे इस पे बोलेंगे, आखिरी में आप रूलिंग दे दे कि सेक्रेटरी साहब आए, ये एमपीएस की कमेटी बनाओ, जो तजावीज मैंने दी है उस हवाले से आप जो है ना रूलिंग दे दे। थैंक यू जनाबे चेयरमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। सूबे की हालत ये हो कि जहाँ पे तालीमी इमरजेंसी हो और वहाँ पे यानी जो तालीम का शोबा है उसकी ये हालत हो कि आपको एक स्कूल के हवाले से अगर जवाब नहीं दे सकते, तो बीइंग एजुकेशनिस्ट मेरा ख्याल है मेरे पास बलूचिस्तान का जितना डाटा है, जितना ड्रॉप आउट्स का डाटा है, जितना इन स्कूल्स का डाटा है, मैं अगर यहाँ पे शेयर करूँ, मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या किसी भी स्टाफ मेंबर को जो है ना उनके स्टाफ में से अगर किसी को भी दे सकते हैं। मैं एज ए मेंबर बल्कि एज ए एजुकेशनिस्ट भी आपको ये बता दूं, अभी कोयटा की स्कूलों की ये हालत है। यहाँ पे मेरे भाई नसरुल्लाह ज़ेरे साहब एक करारदाद लाए हैं। कारिस जेलम की मैं बात करूंगी, 700 स्टूडेंट्स हैं और 15 टीचर्स हैं। जनाब स्पीकर, कम अज़ कम हमारे वजीर तालीम को होना चाहिए था, अगर वो नहीं यहाँ पे हैं, कम अज़ कम इनके स्टाफ में तो लोग हैं, इनकी सेक्रेटरीज किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, इनका स्टाफ किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं। कम अज़ कम एक सवाल का जवाब सिर्फ स्पेसिफिक एक स्कूल का मैंने पूछा है, अगर पूरे बलूचिस्तान का मैं डाटा लेके आऊँ तो ये तो मुझे साल हर साल जवाब नहीं देंगे। इवन मेरा ये सवाल कब से सबमिट है, इससे पहले कि मेरे जितने भी सवालात हैं, एक का भी मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि आया बलूचिस्तान में हमारे एजुकेशन की मद में कितना पैसा लगता है। जनाब स्पीकर, हम अपने प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को जब नहीं चला सकते तो हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को कहाँ से चला सकते हैं? थैंक यू। शुक्रिया जी। बिल्कुल, चूँकि एक अहम डिपार्टमेंट है एजुकेशन, इसमें से 4 सवालात के जवाब तक मौसूल नहीं हुए हैं। वज़ीर तालीम साहब भी नहीं है, सेक्रेटरी एजुकेशन भी नहीं है। जिस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसी तरह की सूरत हाल मेरे अपने हल्के में है, जहाँ पूरे हज़ार टाउन में एक ही स्कूल है और तकरीबन कोई 1200 स्टूडेंट्स है वहाँ पर, और उसके लिए टोटल 20 टीचर्स हैं। कई बार रब्ता किया गया है लेकिन तवज्जो नहीं दे रहा। मैं फिर डायरेक्शन देता हूँ, और ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बार बार हम यहाँ से रूलिंग देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स जब सवालात हो यहाँ पर मौजूद हों, लेकिन वो मौजूद नहीं होते। यहाँ पर 4 सवालात है। सेक्रेटरी साहब, आप बाकायदा इनको लिख के कि मुअज़्ज़िज़ अरकान की तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, आप लोग जवाबात बर वक्त जो है जमा कराएँ, और जो आज नहीं आए हैं उस हवाले से भी उनको आप लिख दें। शुक्रिया।
जनाब चेयरमैन एक इंतहाई अहम इशू है जिसके ऊपर नसरुल्लाह खान ज़ेरे साहब ने की जो करारदाद है, ये सिर्फ कोयटा शहर के हवाले से नहीं है। करारदाद तो हमारा नसरुल्लाह भाई ने कोयटा शहर के हवाले से लेकर आया था, लेकिन ये पूरे बलूचिस्तान का एक इशू है। और इसमें जो सबसे अहम पॉइंट जो नसरुल्लाह भाई ने भी रेज किया था, मैं उसके हवाले से बात करूंगा। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे एक रस्म बन गया है या एक तरीक़ेकार शुरू हुआ है कि पिछले कई सालों से SST के स्पेशली या जितने भी असातिज़ा कराम या टीचर जो पेरिफेरीज के स्कूलों में जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो महीना 2 महीना 6 महीना वहाँ से गुजार के पॉलिटिकल प्रेशर, यूनियन का प्रेशर, ज़ाती ताल्लुकात और इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे आ जाते हैं कोयटा शहर में। और पेरिफेरीज में जितने स्कूल रह जाते हैं जिनमें वहाँ उनकी ड्यूटियाँ होती है, यहाँ पे अटैचमेंट पे आ जाते हैं या ट्रांसफ़र होके आ जाते हैं, वो पोस्ट खाली है। अब वहाँ पे जो भर्ती है उस इलाके का बंदा ज़ाहिर जो कलात में जो लगेगा तो कलात का लोकल लगेगा, पशीन में जो बंदा भर्ती होगा तो पशीन का लोकल ही जाएगा वहाँ पे। अब वो खुद जब अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं पढ़ाएंगे, वो कोयटे में आके यहाँ पे किसी के साथ अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे अब कोयटे में पोस्टें भी नहीं है, इतनी ज़्यादा तादाद में बाहर से लोग आए हैं कि पोस्टें तो नहीं है, अटैचमेंट के नाम पे जैसे तैसे करके इनको यहाँ पे किसी तरीके से खपा दिया गया। और यहाँ पे भी जब इनको लाया गया कोयटा शहर में, तो यहाँ पे भी फिर यही डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ड्यूटी नहीं करना है। वहाँ से जब ये कोयटा आते हैं इसीलिए ताकि ड्यूटी से आज़ादी मिले। अब यहाँ पे भी कोयटा शहर में भी वो उन स्कूलों में अपनी अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है, टीचर्स की तादाद इंतहाई ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, हफ्ते में 1-1, 2-2 दिन ये टीचर आते हैं। इस तरह एक रोटेशन एक बनाया हुआ है कि हफ्ते में इतने दिन मैं आऊँगा, इतने दिन आपने आना है। 15-15 दिन 20-20 दिन स्कूलों की शक्ल नहीं देखते। और दूसरा, मैं इस ऐवान में बैठे अपने मोअज़्ज़िज़ अराकीन से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगा कि गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल है मेरे हल्के में, सेंट्रल हाई स्कूल है मेरे हल्के में। वहाँ पे अक्सर मैं जाता रहता हूँ तो इनकी असातिज़ा की हाज़िरी कम होती है। कुछ टीचर्स हैं जो आते ही नहीं है। जब उनसे पूछते हैं तो हेडमास्टर साहब कहते हैं कि इनकी ड्यूटी फ़िलाने खान साहब के साथ है, ये अख्तर लांगव का PS है, ये मलिक नसीर के साथ ड्यूटी कर रहा है, ये अब्दुल खालिक हज़ारा का PS है, ये फ़िलाने खान का PS है, ये सेक्रेटरी साहब के साथ एज ए PS है, फ़िलाना काम कर। ये मेरी रिक्वेस्ट है इन अपने मोअज़्ज़िज़ अराकीन से भी कि हमें और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मिल जाते हैं, कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो असातिज़ा जिनकी ज़िम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है, उनको कम से कम हम अपने साथ PS ना रखें, क्योंकि वो हमारे साथ होते हैं। पीछे हमारी पूरी एक नस्ल जो है वो सफ़र कर रही होती है, पूरी पीछे जो पूरी एक नस्ल की जो तालीम है वो जो है उससे हम कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो लिहाजा जितने हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, MPA साहिबान हैं और सेक्रेटरी साहिबान हैं, ये मेहरबानी कर लें जो टीचर्स हैं जिनका काम एकेडमिक साइड पे है, वो उनको अपने साथ ड्यूटियों पे ना रखें। और दूसरा, जनाब चेयरमैन, इस वक्त डाउनटाउन में हमारे जो आउट ऑफ द सिटी है या सिटी एरिया में जितने स्कूल्स हैं, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा, ये सारा अब रेजिडेंशियल से कन्वर्ट हो चुका है कमर्शियल पे। यहाँ पे जितने घर बने हुए थे, जितने लोग आबाद थे, घरों में लोग रहते थे, वो सारे यहाँ से माइग्रेट कर गए, वहाँ से शिफ्ट हो गए। उन घरों की जगहों पे अब सारे कमर्शियल प्लाजे बन चुके हैं। लिहाजा इस एरिए में अब आबादी नहीं है, इसलिए इस एरिए की जो स्कूल जो पुराने हमारे स्कूल्स थे, जैसे अफवाह स्कूल था, यहाँ पे पाक गर्ल्स स्कूल था, लेडी सन्डेमन स्कूल था, यहाँ पे उस वक़्त यहाँ पे आबादी थी, इन स्कूलों की तादाद बहुत अच्छी थी, यहाँ पे अच्छे खासे स्टूडेंट्सों की तादाद थी। और मुज़ाफ़ात में इतने स्कूल खुले नहीं थे, इसलिए मुज़ाफ़ात से भी लोग आके इन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे, क्योंकि बहुत पुराने स्कूल थे और इस्टेब्लिश स्कूल थे। अब यहाँ से मुज़ाफ़ात पे लोग शिफ्ट हो गए और मुज़ाफ़ात पे अच्छी स्कूल्स भी बन गए,
जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए अपने बच्चों को लेके। जो सरकारी स्कूलों में अब लोग रह गए, तो वहाँ पे अब एक ज़माना था पूरे सरियाब में एक स्कूल होता था, अब सरियाब में सिर्फ गर्ल्स की मेरे ख्याल से कोई 10-15 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, इसी तरह बॉयज़ की हैं। तो अब उन इलाकों में भी ये तमाम सहूलतें आ गई, इसलिए बाज़ार की तरफ अब लोगों का रुख इतना नहीं है। अब पॉलिटिकल प्रेशर से, यूनियन के प्रेशर से इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से हमने एसेंशियल सर्विसेज का बिल इसी हाउस से पास कर लिया था। अब मेरे ख्याल से उन प्रेशर्स में आने की बजाय अब एक स्कूल में 40 असातिज़ा स्टूडेंट्स की तादाद 200 भी नहीं है, दूसरे जगह पे 2000 स्टूडेंट्स है, असातिज़ा की तादाद 40 भी नहीं है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसको फिलफोर जो है उसको सेक्रेटरी साहब को बुला लिया जाए, क्योंकि हमारी संजीदगी का आलम, एक तो वहाँ से हम गैलरी से हमेशा गिला करते हैं कि वो लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ से भी गिला बनता है कि यहाँ पे भी मामला वही है, यहाँ पे भी कुर्सियाँ जैसे वहाँ खाली है इस तरह यहाँ पे भी खाली है। मिनिस्टर एजुकेशन भी हमारे नहीं है, बाकी वज़रा साहिबान भी 2-3 मिनिस्टर्स को छोड़ के बाकी भी नहीं है। हमारी अपोजिशन के साथी भी काफ़ी हद तक गैर हाजिर रहते हैं, दिन मैं खुद भी गैर हाजिर रहा हूँ। तो ये संजीदगी हमें दोनों तरफ से दिखानी पड़ेगी ताकि इन मामलात को ठीक किया जा सके। अगर हम सिर्फ उस गैलरी में बैठे लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देंगे सेक्रेटरी साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादती होगी। इसमें हमें इस हाउस की नसुल्ला ज़ेरे भाई की मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कोयटा के जितने MPAs हैं, 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 9 MPAs, मिनिस्टर एजुकेशन और एक आध मिनिस्टर और उसमें जो इस मामले के साथ लिंक्ड है, इनकी एक कमेटी बनाई जाए ताकि इन कोयटे की जितने स्कूल्स हैं, सिर्फ मैं स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं कॉलेजेस की भी बात इसमें करूँगा, क्योंकि कॉलेजेस की हालत भी हमारे स्कूलों से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये जिना टाउन का गर्ल्स कॉलेज है, हमारे साथ ही है, बिल्कुल शहर के बीच में है, पोर्श इलाके में। आप वहाँ पे चले जाएं, प्रिंसिपल के पास, बेचारे के पास चपड़ासी भी नहीं है कि वो कोई मेहमान आए तो उसको चाय पिलाए। मैं एक दिन उस कॉलेज की विज़िट पे गया, प्रिंसिपल खुद मेरे लिए कूलर से पानी भर के ला रही है, कहते हैं हमारे पास चपड़ासी नहीं है। अब इस तरह कॉलेजेस में ये हालत है, स्कूलों की हमारी ये हालत है, तो इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाया जाए ताकि उस फोरम पे इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करके इनकी डिटेल में हम चले जाएं और उसमें जो इनकी सोल्यूशन है उसके लिए, क्योंकि एक आध दिन में नहीं होगा। इस तरह नसुल्ला ज़ेरे साहब की तकरीर से, मेरी तकरीर से, हमारी करारदाद से, इस तरह की BCO करारदाद हम इस असम्बली में पहले ला चुके हैं, लेकिन हमारी करारदाद यहाँ से पास होकर रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं, न फिर हमें उन करारदादों के हवाले से न कोई फीडबैक वापस हमें मिलता है। पहले भी मैंने एक दिन यहाँ पे जिक्र किया था कि करारदाद का मतलब यह है कि करारदाद अगर हम कोई पास करते हैं तो उसके बाद असम्बली हमें हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में कम से कम उसकी हमें कुछ बता तो दे इस करारदाद के असरात क्या है, ये रिजेक्ट हो गया है, ये एक्सेप्ट हो गया है, इस पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों ने डिनाई कर दिया उसको। आप रिकॉर्ड निकाल दे, सैकड़ों की करारदादें हमने इस 3 सालों में, 4 सालों में इस असम्बली से पास हुई। किसी एक करारदाद का भी हमें आप फीडबैक बता दें कि हमें असम्बली की तरफ से या इस हाउस में कोई एक ब्रीफ फीडबैक हमें आया हो। करारदादों से मसला हल नहीं होगा, आप रूलिंग दे, कमेटीज पे बना ले, कोयटा शहर के MPAs हो, इसमें आपका मिनिस्टर फाइनेंस हो, इसमें मिनिस्टर PND हो, इसमें मिनिस्टर एजुकेशन हो और इसमें मिनिस्टर CNW हो। ये 4 मिनिस्टरों को भी उसमें ऐड कर दें, कोयटा शहर के MPAs को इसमें ऐड कर दें ताकि इन स्कूलों का एक डिटेल विजिट हो सके, इनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या चीज़ इनकी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें भी एक दफ़ा पूरी हो इनकी, और इन तमाम स्कूलों की हालत भी कुछ किसी हद तक बेहतर की जा सके। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैडम शकीला। पहले वाले को तो हम कहते थे जी जाम साहब के गवर्नमेंट में इन्होंने ये किया, अभी हम नया गवर्नमेंट आ गया, ये इन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए, ये तो उनसे भी आगे चला गया है ना। हेल्थ का यही हाल है और एजुकेशन का, ये दोनों को कम से कम, ये हमारे बेसिक चीजें हैं, ये दोनों बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, इनको कम से कम इनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ दफ्तरों में बैठना और
चक्कर वाली कुर्सी पे बैठना, अगर इससे मसले हल हो जाते हम 2-2, 4-4 कुर्सियां लेके दे देंगे उनको। नस्रुल्लाह ज़ेरे साहब के करारदाद के मुकम्मल हिमायत अपनी तरफ से और अपनी जमायत की तरफ से। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि मलिक साहब ने भी बात की, और कोयटा के अलावा भी कोयटा में भी अगर ये पोजीशन है तो आप ख़ुद समझ लें कि हमारे दही इलाकों में क्या पोजीशन होगी। मैंने पहले भी उस दिन अपने स्पीच में यहाँ पे कहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट खुजदार में कोई 166 स्कूलें बंद पड़ी हुई है जो जिनमें टीचर्स न होने की वजह से, उनमें से 5-6 कोई और वजह है, और बाकी अक्सरियत जो है ना वो इसी वजह से कि जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है या लोअर स्टाफ की कहीं कमी है, तो इसी वजह से बंद है। जनाब स्पीकर, हमारे दोस्त वज़रा साहिबान कुछ बैठे हुए, एक तो मेरे साथ बैठा हुआ है तो वो सुन लेगा, अगर बाकी अपने मजलिस में लगे हुए वो शायद नहीं सुने, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट में भी यही हाल था। हम जब गवर्नमेंट में आए थे उस टाइम 2018 में, तो हमारे 44 स्कूलें बंद थे। तो ये इनकी मेहरबानी, जाम साहब की मेहरबानी, अब कुदूस बीजंजो साहब की मेहरबानी और इस गवर्नमेंट की मेहरबानियाँ है, अब ये 166 हो गए। तो मेरे ख्याल में जब हम अपना टर्नओवर पूरा करेंगे ये 200 से प्लस हो जाएंगे। ये जो पोजीशन अगर मौजूदा रहा, क्योंकि दावे सब कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी हम तो, पहले वालों ने भी कहा कि एजुकेशन के लिए जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब ने, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने, उसने कहा कि मैं तो इनकलाब लेके आऊँगा बलूचिस्तान में, उनके इनकलाब से भी नहीं हुआ। अब मरी साहब है, मरी साहब का इनकलाब हम देखेंगे, उसमें भी 166 से हम आगे जा रहे हैं। अभी मैंने सुना था 167 हो गए, 2 टीचर 67-68 हो गए, 2 टीचर और रिटायर हो गए। तो साबिका वजीर तालीम आपके पास बैठे हुए, ये कैसे था? सुन रहा है सर जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, तो मुझे यकीन है कि ये इसी तरह अगर इन चीज़ों को सीरियस इन्होंने नहीं लिया तो मेरे ख्याल में ये आगे जाके जवाब हमें देना पड़ेगा, और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो उनके साथ साथ ये हमारे लिए भी एक मुसीबत बन जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये फौरी तौर पे इन पे जितने टीचर्स के पोस्टें हैं, जितने नॉन टीचर्स के हैं, उनको निकाला जाए, ताकि उनमें कम से कम इतने हो कि कुछ तो स्कूलें खुल जाए। शहर में तो ये है कि कुछ स्कूलें खुली है अगर टीचर्स की कमी है, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट में 166 स्कूलें बंद पड़ी हुई है। ये रिकॉर्ड पे बिल्कुल है, मैं इसको पेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वुज़रा मजलिस में लगे हुए, अख्तर हुसैन साहब वुज़रा को छोड़ देता कि अख्तर हुसैन की वजह से हो रहा है सब कुछ, अपनी सीट पर नहीं बैठे, सब एक कान से सुनते हैं। और ये गवर्नमेंट भी, मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट सीरियस है। ये जो कुदूस बीजंजो साहब का गवर्नमेंट आया है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस है। अगर ये सीरियस होते, मेरे ख्याल में ये पोस्टें, ये अभी 6 महीना उनको मिला, उन्होंने कहा था कि हम तो 1 महीने में ये चीज़ें निकाल देंगे। ऑन द रिकॉर्ड है, उसने वजीर अला साहब ने हल्फ लेने के बाद उसने कहा था कि हम इनको तो 1 महीने में हम इनको निकाल देंगे, ये पोस्टें हम 1 महीने में निकाल देंगे। और 1 महीने के अंदर अंदर वो महीने गुजर गया, अभी 6 महीना उनको हो चुका है। मेहरबानी करके मैं वज़रा के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला अगर होता तो मैं उसको बता देता कि अगर इस तरह की चीज़ें चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप मुजरिम होते हुए हम भी आपके साथ इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। मेहरबानी करके बलूचिस्तान पे तवज्जो दे दे, पोस्टें निकाल दे, लोगों को दे दे, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, इसी तरह हेल्थ का पोजीशन, इसी से मैं फायदा उठाते हुए, हेल्थ का पोजीशन इससे भी खराब है, एजुकेशन से खराब है। हेल्थ में कोई सीरियस लेने वाला नहीं है। हर बंदा या वुज़रा है या सेक्रेटरीज है या दूसरे है, वो अपने लिए सोच रहा है, किसी बलूचिस्तान के लिए नहीं सोच रहा है। किसी भी आप हॉस्पिटल में जाए आपको एक पट्टी नहीं मिलेगा और पैनाडोल की गोली भी तक भी नहीं मिलेगा। पहले वाले को तो हम कहते थे जी जाम साहब के गवर्नमेंट में इन्होंने ये किया, अभी हम नया गवर्नमेंट आ गया, ये इन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए, ये तो उनसे भी आगे चला गया है ना। हेल्थ का यही हाल है और एजुकेशन का, ये दोनों को कम से कम, ये हमारे बेसिक चीजें हैं, ये दोनों बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, इनको कम से कम इनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ दफ्तरों में बैठना और चक्कर वाली कुर्सी पे बैठना, अगर इससे मसले हल हो जाते हम 2-2, 4-4 कुर्सियां लेके दे देंगे उनको। मेरी गुजारिश यही है तमाम वुज़रा से कि वो इन चीज़ों को देख ले
اور اپنے کیبنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں رکھ لے. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نہیں ہے, اس کا وعدہ اور وہ 1 مہینے کے اندر پوسٹیں نکالنا وہ دھیرے دھیرے رہ گئے. ابھی 1 سال میں نکالے, پھر بھی ہم خوش ہیں کہ 1 سال میں 1 مہینے والی بات 1 سال میں ہو جائے, بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اگر اس طرح یہ نہیں کریں گے تو جناب چیئرمین ہم بھی مجبور ہو جائیں گے, پھر ہم کوئی قدم اٹھا لیں گے. اگر ہم پھر بھی کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ماحول اسمبلی کا چلتا رہے اور یہ چیزیں جو انہوں نے وعدے کیے اپنے وعدے پورا کریں, ہمارے وعدوں کو وہ چھوڑ دے, اپنے وعدے وہ لوگ پورا کر دیں. شکریہ جناب چیئرمین. بہت شکریہ. کیونکہ بہت یہ بڑا ایشو ہے, واقعی ہے ہمارے اسکولز میں ٹیچر نہیں ہیں. 2019 میں اس وقت میرے خیال 5000 کے قریب جو اسکول میں بھرتی ہوئے تھے ٹیچرز, اور ہمارے ایس ایس ٹی کے بھی تقریباً 2000 کے قریب جو ہے ٹیچر بھرتی ہوئے تھے. بالکل اس میں کمی بیشی ہے. ابھی بھی ہمارے پاس میرے خیال 8000 کے قریب جو پوسٹیں ویکنٹ ہے. اس دن میرے منسٹر صاحب سے یہی بات ہوا تھا کہ آپ اس کو جلدی کائنڈلی یہ کر دیں. اس نے کیبنٹ میں لے کر آیا تھا, کیونکہ بہت سے اس میں ایشوز آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جس کے پاس یہ ایک بہت عرصہ جو آپ کا ایم ایڈ جو بی ایڈ کا جو سلسلہ پی ٹی سی اے کا جو تھا سلسلہ وہ بند کیا گیا تھا. ابھی اس رولز کو ریلیکس کیا گیا ہے, جس میں تقریباً یا ان قریب 8000 کے قریب جو ہم نے انشاءاللہ ٹیچر بھرتی کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جلد سے جلد رجسٹر پہ ہو جائے گا اور ریکروٹمنٹ کمیٹی بھی بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آلریڈی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ لیڈی صاحب. اور آپ اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اس کی حمایت کرتا ہوں. اور جو کیلکولیشن انہوں نے بیان کی, بلوچستان میں اسکولوں کی پوزیشن بالکل اسی طرح ہے. اور کوئٹہ کے مضافات میں اگر چلے جائے سٹی کے اندر, جس طرح انہوں نے کہا کہ اور ان اسکولوں کی انہوں نے مثالیں بھی دی. بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں پہ 3 بچے یا 3 بچیوں پہ بھی ایک ٹیچر آپ کو ملے گا. اور اسی شہر کے اندر مضافات میں جس طرح سریاب ہے, کچلا ہے, مشرقی بائی پاس ہے, خلجی کالونی ہے, یا ہماری میان گونڈی ہے, تو بہت سارے ایسے اسکول ہیں. میں اپنی ہائی اسکول گرلز ہائی اسکول کیچی بیگ کی مثال جس طرح میرے دوستوں نے بھی دی ہے, اور 2500 اسٹوڈنٹس گرلز ہائی اسکول کیچی بیگ کے اندر ہے. اور ایسے کمرے بھی میں نے دیکھے جس کے اندر 80 اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہے, اور ٹیچر کو وہاں داخل ہونے کی بھی جگہ نہیں جہاں پہ وہ کھڑے ہو کر لیکچر دے سکے یا بچیوں کو پڑھا سکے. اور 100 طالب علموں پہ 80 طالب علموں پہ آپ کو ایک ٹیچر ملے گا. بلوچستان کے جو مضافات سے وہ لوگ جو ہر شخص چاہتا ہے کہ آج میری ٹرانسفر یہاں پہ کوئٹہ ہو اور کوئٹہ میں میں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکوں. بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ جو تعلیم کی پوزیشن ہے, وہاں پہ جو اسپتالوں کی پوزیشن ہے, وہاں پہ جو دوسرے بے روزگاری کا عالم ہے, اس چھوٹے سے شہر میں جس کو کوئٹہ کہا جاتا ہے, جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے, اور اس وقت اس کی آبادی 40 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے. ہر شخص یہاں پہ آنا چاہتا ہے اور یہاں پہ اپنی پوسٹنگ چاہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس شہر پہ اور کتنا بوجھ ہم ڈالنا چاہیں گے. وہ ہزاروں ٹیچر جو وہاں سے اٹیچمنٹ پہ وہاں کے اسکول, اب میرے اپنے علاقے میں حلقے پی بی 32 جس علاقے سے میں یہاں کا نمائندہ ہوں, آپ اگر ڈگاری مارواڑ ان علاقوں کے اسکولوں میں پرائمری اسکولوں میں جائے, سارے ٹیچر کوئٹہ کے وہاں پہ اپائنٹ کیے گئے ہیں. میں نے اکثر وزٹ کیا ہے, وہاں پہ اسکولوں میں تالے لگے ہوئے ہیں, وہاں کوئی پڑھانے کی, یہ تو کوئٹہ سے قریب کا علاقہ ہے. یہاں ہر شخص ہر ٹیچر جو ہے, جس طرح دوستوں نے کہا کہ کوئی یونین کے سفارش پہ, کوئی کسی منسٹر کی سفارش پہ, کسی سیکرٹری کے سفارش پہ اٹیچمنٹ پہ جو ہے اسکولوں میں, اور جب یہاں ہمارے اسکولوں کے اندر پوسٹ بھی آ جاتے ہیں تو انہی چھوٹے پوسٹوں پہ بھی جھگڑا ہے اور بہت سارے اسکول بند پڑے ہیں. جس طرح میری بہن نے آپ کو مثال دی کہ کلات کے ایک اسکول ہے خیسندون, جہاں پہ جو کلاس 4 کا ایک بندہ ہے جس کو باہر سے لایا گیا اور وہ اسکول اب بند پڑا ہے, کیونکہ اس علاقے کے لوگوں نے زمین دی ہے, ان علاقے کے لوگوں نے سب کچھ دیا ہے, تمام سروس دیا ہے, لیکن کیا اس علاقے کے لوگوں کا
ये हक नहीं बनता कि अगर कोई क्लास 4 का कोई पोस्ट आ जाए तो उस इलाके से वहाँ पे अपॉइंट किए जाए। यही हमारे एक स्कूल था हाई स्कूल खली, जो मेरे ख्याल में गुज़िश्ता तकरीबन 12 सालों से बंद पड़ी है। इलाके के लोगों ने वहाँ पे आधा एकड़ ज़मीन दी जिस पे 1 करोड़ से ज़्यादा की एक अच्छी सी बिल्डिंग बनी। जब वहाँ पे कुछ एसएनी आए तो वो सारे कोयटा शहर से भेजा गया और वहाँ पे इलाके के लोगों ने मजबूर होकर उस स्कूल को ताला लगाया, जो हाल ही में मैंने बड़ी कोशिशों के बाद उसको दोबारा खोल दिया। 8 साल तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है और इलाके के लोग हाई कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ पेशियाँ करती रही। तो जनाब चेयरमैन साहब, आप इस कुर्सी पे जब बैठे होते हैं तो हम आपसे अक्सर गुजारिश करते हैं कि ये इस कुर्सी की एक बहुत बड़ी ताकत है, आप रूलिंग दे दें। ये एक जेन्युइन मसाइल है और आप इनका हल यही है कि हम यहाँ, एक तो बदकिस्मती यह है कि जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि आज पूरी ऐवान खाली पड़ी हुई है, हम खाली कुर्सियों से हमेशा बातें करते हैं, इख्बारात की तो जीनत बनती है, लेकिन उसके बाद जो काम होना है, जो चीज़ें होना है, वो अक्सर होता नहीं है। तो आज मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि न सिर्फ स्कूलों की यही हालत है बल्कि हमारे अस्पतालों की भी यही हालत है। डिस्पेंसरीज हो, चाहे वो हेड क्वार्टर्स के हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स वहाँ के सब यहाँ कोयटा आना चाहते हैं। और यहाँ इवन आप बीएमसी और सिविल हॉस्पिटल को छोड़कर आप अगर शेख ज़ैद भी चले जाए तो जनाब चेयरमैन साहब, आपको शेख ज़ैद के अंदर भी डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में एक दफ़ा सीएम साहब ने सरियाब रोड का विज़िट किया और साथ हम भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि हम शेख ज़ैद अस्पताल भी जाना चाहते हैं। तो मगरिब के बाद थे, अब शेख ज़ैद हॉस्पिटल गए, वहाँ 2 डॉक्टरों के अलावा मेरे ख्याल में कोई स्टाफ ही नहीं था। आखिर में डीसी को कहा कि इनकी रजिस्टर उठा ले और ये सारे गैर हाजिर थे। तो आज वही अस्पताल है, उसी की वही पोजीशन है। मुझे नहीं मालूम कि हमारी न अस्पतालों की हालत बेहतर बन रही है, ना हमारे स्कूलों की हालत बेहतर बन रही है, ना हुकूमत और हुकूमत वक्त जो भी है ना वो बैठ कर जो है इन चीज़ों पे ध्यान दे देवे। एक और बड़ी बात जनाब चेयरमैन साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर साल जब हम बजट पेश करते हैं, उसी बजट के अंदर हज़ारों पोस्टें मुख्तलिफ आपको डिपार्टमेंट्स में मिलेंगे, उनको 2-2, 3-3 दफ़ा अखबारों में मुश्तहर किया जाता है। गरीब लोग बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आके यहाँ एक दफ़ा तो आके फार्म भरते हैं, फिर दूसरी दफ़ा आके वो इंटरव्यूज़ देते हैं, टेस्ट उनका होता है, लेकिन जब वो एंड ऑफ द ईयर जब साल आखिर हो जाता है, फिर यही पोस्टें लैप्स होकर हमारे अरबों रुपए हम फिर देखते हैं कि वो आखिर में पता चलता है कि बलूचिस्तान के 38 अरब रुपए लैप्स हुए। ये इन्हीं पोस्टों के पैसे होते हैं, उनको फिल तो नहीं किया जाता, लेकिन गरीबों के पैसे जो है हमेशा इस पे खर्च किया जाता है। आज भी मैंने देखा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्टें आई थी, मुश्तहर हो चुके हैं, कोई उनकी वहाँ पे तैनाती नहीं हो रहा है। आप हमारी एग्रीकल्चर की मिसाल ले लें, आप ट्रांसपोर्ट की पोस्टें आए, एक्साइज टैक्सेशन की पोस्टें आए, इवन खेलो सकाफत की पोस्टें, मेरे ख्याल में दर्जनों ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके पोस्टें हर दफ़ा जो है अखबारों में आ जाते हैं, फिर इन पे तैनाती क्यों नहीं किया जाता। हम पिछले गवर्नमेंट की बात सुनते थे, जब जाते जाते वो चीफ सेक्रेटरी चट्टा साहब उसने एक इंकशाफ किया था कि बलूचिस्तान में 32,000 पोस्टें खाली है। आज भी वही 32,000 पोस्टें, मेरे ख्याल में 40,000 पोस्टें हैं। और ये हुकूमत भी अब जब आ चुका है जनाब स्पीकर साहब, हमारी दूसरी बजट भी आ चुकी है, हमें कभी उम्मीद है जिस तरह ये चल रहा है तो अंदाज़ा है कि हम जब सुनेंगे जून में आएगा, जब ये बजट से पहले हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे 30 अरब रुपए, 25 अरब रुपए, 40 अरब रुपए ये लैप्स होंगे। ये आज मैं इस फ्लोर पे कह रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को गवाह बना के कि ये अवाम नास के पैसे है, ये हमारे बलूचिस्तान के लोगों के पैसे है। इस पे अगर ब्यूरोक्रेसी अगर कुछ एर पेर कर लेता है तो ये अवामी नुमाइंदों की और ख़ास कर हुकूमत का जो है ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पेचीदगियाँ दूर करके जनाब स्पीकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब,
कि फ़ौरन उन पे तैनाती करके ये हमारे आवाम का जो है ये हक है, ये हमारे लोगों का हक है कि हम अपने अस्पतालों की हालत बेहतर बनाएं, हम अपने स्कूलों की हालत बेहतर बनाएं, और ख़ासकर जो हमारी हाज़िरी का आलम है, हम जिस तरह अख्तर हुसैन ने कहा कि हम हमेशा तो यहाँ पे जो गैलरी में बैठे हुए हम कहते थे कि सेक्रेटरी हजरात जो है यहाँ पे आते नहीं है, अब तो हमारे मेंबरान का भी तादाद इतनी कम होती जा रही है, उनकी जब कोई इस किस्म का मसला होता है, कोई मफाद की बात होता है, तो हम लोगों को खींच कर कोई करारदाद तो पास कर लेते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन जो असल काम हमने करना है जनाब स्पीकर साहब, जो अवाम उन्नास की काम है, जो हमारे लोगों की काम है, तो वो नहीं हो पा रहे। इसी करारदाद के साथ साथ मैं एक और बात भी आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब कि सरियाब रोड और सब्जल रोड जो गुज़िश्ता 1 साल से लोगों की दुकानें गिरा कर जो है उनको बग़ैर नोटिसों के और उनको अब तमीर भी नहीं करने दिया जा रहा है कि हो सकता है कोई नई और नक्शा बने, इसको बढ़ाया जाए। खंडरात का ढेर है, आप अगर इन 2 सड़कों में सफ़र करें तो घंटों घंटों आपको लगेंगे। हम जब रमज़ान के महीने में यहाँ से जाते हैं तो घंटों सरियाब रोड पे फंसे रहते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर इतना, और सालों से मेरे ख्याल में ये 6 महीने से गुज़िश्ता है इन दोनों रोड पे काम रफ्तार, मैं नहीं कहूँगा काम की रफ्तार बंद है, काम बिल्कुल बंद है इन काम। तो मैं कहता हूँ कि आज आपकी रूलिंग ये 2-3 चीज़ों के हवाले से जाना चाहिए। एक तो ये जो स्कूलों का मसला था, इस हवाले से जिस तरह नसरुल्लाह ज़ेरे ने कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए और फ़ौरन इस कमेटी को एक 2-3 मीटिंगों के अंदर अपनी एक जामे मनसूबा बंदी करके एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और उसी पॉलिसी के तहत जो है अगर वो फैसला करे कि बाहर के टीचर जाके अपने इलाकों में जाके पढ़ाए और बाहर की डॉक्टर जो है अपने उधर हेड क्वार्टर्स में जाके अपने अस्पतालों में ड्यूटी दे दें, और साथ जो यहाँ पे वो स्कूल जो खाली पड़ी है उन स्कूलों में हम लोगों को तकसीम करे, तो फिर बहुत सारे स्कूल जो इस वक्त बंद पड़े हैं या बहुत सारे हॉस्पिटल जो बंद पड़े हैं वो भी खुल जाएंगे, और साथ ही इस सिस्टम का इस निज़ाम भी जो है बेहतर होगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ के चेयर्स में ज़िम्मेदार कौन है जो इन तमाम सवालों का जवाब दे दे, जो इस ऐवान को मुतमईन कर सके, जो इस ऐवान ये करारदाद पास तो हो जाएगा, मेरे ख्याल में वहाँ से भी लोग कहेंगे कि मंजूर, और हमारी तरफ से तो ये करारदाद है, ये मंजूर है। लेकिन इस करारदाद के बाद इस करारदाद का जो फ़ायदा है जो अवाम उन्नास को पहुँचना चाहिए, या इस करारदाद को अगर लाया गया है, हम चाहते हैं कि उसके लिए आप एक रूलिंग दे दें, और ये उसी रूलिंंग के अंदर आप उसकी मीटिंग का भी तैयार करें कि 2 दिन के अंदर 1 हफ्ते के अंदर इसकी मीटिंग हो, ताकि वो अपनी जो है सिफारिशात बनाकर जो है आगे भेजे। और एक रूलिंग जो है आप सरियाब रोड और सब्जल रोड के हवाले से भी जनाब स्पीकर साहब आप दे दे, ताकि इन दोनों पे जो काम बंद पड़े हैं, और इस रमज़ान के महीने में गाड़ियाँ हमेशा खड्डों में गिरते हैं, मुसाफिर रोड दिन में मेरे ख्याल में हज़ारों लोग फंसे रहते हैं, गाड़ियाँ फंसी रहती है, मुसाफिर परेशान है, स्कूल के बच्चे, ये तमाम उस पर भी रूलिंग दे दे, और कोयटा पैकेज उससे हो रहा है उसकी PD को या ज़िम्मेदारों को बुलाए ताकि उनसे मीटिंग करके इस पर वो उनकी काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए और काम शुरू किया। थैंक यू। शुक्रिया मलिक नसीर शाहानी साहब। जी यूनुस ज़ेरी साहब। मैं